Hello students, in today's lecture we're gonna deal with the aims and objectives of English language. Why we are teaching or why we are learning English language. What are the aims? What are the objectives of learning and teaching English language? यानी कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसके पीछे उद्देश्य है, क्या उसके पीछे हमारा पर्पस है, एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सो ब्रॉडली देर आर two aims of teaching English language. First, let's discuss about the aims. First aim of teaching English language is reception and second is expression. Reception यानी कि स्वीकार करना. Reception means listening of anybody's view and silent reading with comprehension. वी कैन डू रिसेप्शन. हम दो तरीके से किसी लैंग्वेज को रिसीव कर सकते हैं, या तो हम सुनकर या फिर जब हम चुपचाप से पढ़ रहे होते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हैं किसी रिटन थिंग को. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मीन्स व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आइडियाज थ्रू स्पीकिंग, रीडिंग अलाउड और राइटिंग. देर आर थ्री areas how we can express ourselves. So broadly these are the aims of teaching English language. And scholars like Thompson and Wyatt gave fourfold aims of teaching English language at school stage, which are these. Number one, to understand spoken English, which means student will be able to understand spoken English, and after that they will be able to speak English, they will be able to understand written English, and they will be able to write English. So थॉमसन और व्याट ने ये 4 एम्स बताए हैं, उद्देश्य बताए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के पीछे क्या इसके उद्देश्य हैं. सो दीज आर द फोल्ड aims given by the Thompson and Wyatt. Let's discuss it like according to the class of the students. Like we have here 2 categories: junior stage and the senior stage. What are the aims of teaching English language एट जूनियर लेवल और सीनियर लेवल? जूनियर लेवल जो है वो क्लास 6, 7th, 8th को प्रेजेंट करता है, और जो सीनियर स्टेज है वो है आपकी 9th, 10th, 11th, 12th. तो अगर हम जूनियर स्टेज की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द जूनियर स्टेज एंड द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट दिस स्टेज, फर्स्ट वी हैव हेयर प्रोनाउंसिएशन. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पीक विद एक्सेप्टेबल प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट वी हैव हेयर शॉर्ट स्टेटमेंट्स. बच्चे जो हैं वो शॉर्ट स्टेटमेंट्स को बना पाएंगे. दे विल बी एबल टू मेक शॉर्ट स्टेटमेंट्स. शॉर्ट क्वेश्चंस, वो शॉर्ट क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. दे विल बी एबल टू आंसर द शॉर्ट क्वेश्चंस. दे विल बी एबल टू राइट लेजिबली, मीन्स विद यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट स्पेलिंग. रीडिंग एबिलिटी जो होगी उनकी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, एंड उसके पीछे यही उद्देश्य है. दिस इज़ द एम. इनफ वोकेबलरी, दे विल acquire enough वोकेबलरी. उनकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी. दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, उनको इंग्लिश समझ आएगी, एंड जो भी कोई स्पीकर इंग्लिश बोलेगा वो उसको समझ पाएंगे, वेदर टीचर और एनी पर्सन. use English, they will be able to use English for many jobs, like they can respond to calls, request, greetings. जैसे आप बोलते हो ना, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, थैंक्स, मे आई कम इन, मे आई गो, लाइक दिस. नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन. दे विल बी एबल टू quite use English while conversation. They will try, they will be able to understand it. Next we have aims at the senior stage. First we have here fluency and accuracy. Students will be become or they will be able to speak fluent and with accuracy, speak freely. Students will be able to speak English freely without any hesitation. They will be able to talk in English anywhere, not only in school but also anywhere in society, with parents, friends, etc. रिस्पॉन्ड टू नेटिव स्पीकर्स. जो बच्चे हैं वो अपने नेटिव, जो इंग्लिश नेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे, उनको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे उन्हीं की लैंग्वेज में. सीनियर लेवल पे ये बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उद्देश्य रहते हैं. दीज आर द एम्स वाई दे आर learning or teaching English language.
then they will be able to read books with understanding, whether it is poetry, prose, composition, novel, journal, magazines, वो उसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे. Vocabulary of about 2500 words will be acquired by them. उनकी जो vocabulary है expand हो जाएगी 2500 तक, बिकॉज वो न्यूज़पेपर बहुत सारे स्टफ़ को पढ़ेंगे. कंपोज फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली, वो खुद से कंपोज कर पाएंगे, ऐसे राइटिंग कर पाएंगे, कुछ और पोइट्री लिख पाएंगे, या कुछ भी लिटरेरी, कुछ भी क्रिएटिव कर पाएंगे. यूज़ रिसोर्स मटेरियल, दे विल बी एबल टू यूज़ रिसोर्स मटेरियल्स. कोई भी रिसोर्स मटेरियल है, चाहे वो डिजिटल रिसोर्स हैं, इंटरनेट से रिसोर्सेज लेना हो या फिर कहीं और से लाइब्रेरी से लेना हो, वो यूज़ कर पाएंगे किसी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने किसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज अप्रिशिएट सिंपल पोइम्स. वो पोइट्री लिटरेरी थिंग्स को अप्रिशिएट कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, लिटरेरी टर्म्स उन्हें पता होंगी, पोइम का एसेंस उन्हें पता होगा. दे विल बी एबल टू ट्रांसलेट any any stuff in their or a from mother tongue to English language. वो translation कर पाएंगे easily. Interest in literature, they will be able to show interest in English literature, or they will be able to develop literary taste. So these all are the aims of teaching English language at junior and senior level. Let's talk about the objectives of teaching English. According to Pigray, our chief concern should not be about the difficulties of pronunciation, growth of vocabulary, grammar and structure, but with language abilities. So being a student or teacher, we should not just focus on the pronunciation, growth of vocabulary, grammar or structure, but about the language abilities. According to Thompson and Wyatt, there are four full objectives of teaching English again. To understand spoken English. These are the objectives. क्या उद्देश्य हैं कि इंग्लिश पढ़ाने के पीछे? तो सबसे पहला उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू थॉम्सन एंड व्याट, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, बोली गई जो इंग्लिश है उसको समझना. टू रीड एंड अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, रीड पढ़ पाना और उसको समझ पाना. लिखी गई जो स्टफ़ है, लिखा हुआ स्टफ़ है, उसको पढ़ पाना और उसको समझ पाना. और टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश को बोल पाना. टू राइट करेक्ट इंग्लिश, सही इंग्लिश को बोल पाना और लिख पाना. So these are the fourfold objectives given by them, and according to normal or international objectives we have here, these are 5. पर्पस कल्चरल है, सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए उसके पीछे, इंग्लिश को पढ़ाने के पीछे एक सांस्कृतिक कल्चर कोलैबोरेशन है. आप किसी की लैंग्वेज को सीखते हो, यू गेट द कल्चरल टच. लिंग्विस्टिक्स, जो आपकी ग्रामर है उसको आप इन्हांस कर पाओ. यूटिलिटेरियन, विच मीन्स आज का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस वगैरह है उसको देखते हुए इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. दैट्स वाई यू आर लर्निंग इट. नेक्स्ट इज़ लिटरेरी एसेंस को यानी कि जो साहित्यिक आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके रिगार्डिंग आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है. मे बी यू विल बिकम philosopher of English language, or a poet, good novelist. Next is integrative. So many students these days opting English language or English medium, so it is integrative subject also. These are our objectives, to integrate all the subjects with English language or learn through English language. Now let's discuss about the objectives of teaching English at junior level. So here we have again listening with understanding, speaking clear, correct, precise language. They will be able to to make the students reading with understanding, writing clear, correct, precise language. And if we talk about the senior level, the main objective is to develop
or development of a taste for English literary by reading prose, poetry, etc. To give aesthetic pleasure and to develop interest in reading English literature, which means aesthetic pleasure means बच्चे खुद से कुछ लिटरेरी कंपोज कर पाएंगे और अपनी जो आइडियाज़ है एक्सप्रेशन कर पाएंगे उसको पोइट्री या प्रोज की फॉर्म में. अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल व्यूज़, किसी स्कॉलर्स के व्यूज़ को समझ पाएंगे. टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू डू ट्रांसलेशन वर्क इफेक्टिवली. सीनियर लेवल पे ये ऑब्जेक्टिव्स, ये उद्देश्य रहता है कि बच्चे जो हैं वो खुद से ट्रांसलेट कर पाएंगे किसी भी चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में इफेक्टिवली, करेक्टली. So now let's have the Bloom's taxonomy of education objectives given by him. आपने और सब्जेक्ट्स में भी, टीचिंग सब्जेक्ट्स में ये किए होंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. इंग्लिश में भी इसका बहुत बड़ा रोल है. सी he has categorized it into three terms: cognitive domain, affective domain and psychomotor domain. cognitive domain जो है वो आपका intellectual aspects यानी कि मेंटल प्रोसेस के रिगार्डिंग है, थिंकिंग एबिलिटीज़ के रिगार्डिंग है. व्हाट यानी कि यू पुट क्वेश्चन हेयर. नेक्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन, डूइंग व्हाट. एंड नेक्स्ट इज साइकोमोटर डोमेन, मीन्स डूइंग हाउ. फर्स्ट इज व्हाट, कोग्निटिव डोमेन थिंकिंग एबिलिटीज से कनेक्टेड है. अफेक्टिव डोमेन यानी कि आपकी फीलिंग्स, इमोशन के रिगार्डिंग है. और साइकोमोटर डोमेन यानी कि स्किल्स के रिगार्डिंग है, इंग्लिश स्किल्स. सो फर्स्ट इज़ लाइक कॉग्निटिव डोमेन, बच्चे जो इंग्लिश में सोचते हैं. अफेक्टिव डोमेन, देयर फीलिंग्स, इमोशंस. साइकोमोटर डोमेन, स्किल्स, जितने भी उनके स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज स्किल्स, राइट. So cognitive domain में we have here knowledge, comprehension, applications, analysis, synthesis, evaluation. And in affective domain we have receiving, responding, valuing, conceptualization, organizing, comprehension. And in psychomotor domain, impulsion, imitation, manipulation, coordination, control and habit formation. So if we discuss about the cognitive domain, we have first is knowledge from bottom to upwards. knowledge यानी कि बच्चे जो हैं वो what, when, where क्वेश्चन कर पाएंगे. ओके, दे विल ट्राई टू थिंक, रैशनलाइज. अपनी जो थिंकिंग एबिलिटी है वाइल इंग्लिश लैंग्वेज, वो ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉल करेंगे, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, दे विल अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, जो उनको वो उसको समझेंगे, कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. एग्जाम्पल्स के थ्रू ट्रांसलेट कर पाएंगे वो. देन नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन, जो उनको नॉलेज दी जा रही है उसको वो अप्लाई कर पाएंगे. नेक्स्ट इज़ एनालिसिस, कोई ग्रामर का टर्म्स है उसको अप्लाई करने के बाद वो एनालाइज करेंगे कि उन्होंने सही किया है या उनकी जो सेंटेंस फ्रेम में कोई गलती है. सिंथेसाइसिस, यूज़ ओल्ड आइडियाज़, उसको जो उनकी पुरानी नॉलेज है उससे वो न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करेंगे. रॉ मटेरियल, दे विल टेक केयर, दे हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक न्यू वन. लास्ट वन इज इवैल्यूएशन, दे विल इवैल्यूएट इट. सो वो उसको जज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और रिकमेंड करेंगे कि व्हाट विल बी, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. ओके, सो इस तरह से जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काम करती है. सी बिहेवियरल टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें, देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज एंड बिहेवियरल टर्म्स. टीचिंग प्रोज के रिगार्डिंग हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिहेवियरल टर्म्स में देखें तो फर्स्ट इज़ नॉलेज. स्टूडेंट्स विल गेट नॉलेज ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस. जब वो प्रोज पढ़ेंगे तो उनकी जो वोकैबुलरी है इन्हांस होगी. देन दे कैन रिकॉग्नाइज, दे कैन रिकॉल, मीन्स दे विल रिकॉग्नाइज द वर्ड्स कि उन्होंने पहले पढ़े हैं. नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग, वो जो प्रोज में दिए गए वर्ड्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोज लेसन एंड
जो भी लैंग्वेज के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हैं वो समझ पाएंगे। स्किल्स जो हैं उनकी जो 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज की, द होल 4 स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वो इन्हांस होगी। Then application, they will be, after reading the prose, they will be able to, apply the things, or they can write summary of the prose, or whatever they get, they can elaborate in their own words. Next is instructional objectives of teaching poetry in behavioral terms. Again same thing, उनको knowledge होगी कौन सा कौन सा जॉनर है पोइम का, ये मॉर्निंग पोइम है, सैड पोइम है, क्या सेंट्रल थीम है इस पोइम की, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, अंडरस्टैंडिंग, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द पोइट. Skills again, reading, recitation skill, speaking, listening. Again application, they will be apply the things, and or they will be able to express this poem. Next is while teaching composition, what are the objectives in behavioral terms. Knowledge, again students will they will able to get knowledge about the composition, story, paragraph, or they can recall the composition in knowledge. And for understanding, they will understand the things, वो समझ पाएंगे कि इस composition में paragraph में biography में क्या दिया है. And skills, again 4 skills will be enhanced here. एप्लीकेशन वो खुद से लिख पाएंगे, कुछ कंपोज कर पाएंगे. सो दीज ऑल आर द objectives of teaching English language in behavioral terms. On the basis of this lecture, you have to make an assignment, discuss the aims and objectives of teaching English in detail. Be particular about your assignments.